خبر ہے لاہور سے کہ ڈی آئی جی شارق جمال کی گھر میں پراسرار موت ہوئی ہے۔ شارق جمال اپنے گھر میں مردہ پائے گئے۔ شارق جمال کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ ڈی آئی جی کی اہلیہ اور پولیس افسران اسپتال پہنچ گئے۔ شارق جمال کی موت کے حقائق جاننے کے لیے تحقیقات شروع کی گئی ہیں۔ شارق جمال ڈی آئی جی ٹریفک اور ڈی آئی جی ریلوے بھی تعینات رہے ہیں، جبکہ شارق جمال کچھ عرصہ قبل ہی محکمہ پروموشن کورس کر کے آئے تھے۔ شارق جمال نے گریڈ 21 میں ترقی کے لیے کورس کیا تھا۔ ڈی آئی جی شارق جمال ان دنوں او ایس ٹی تھے۔ اس بارے مزید تفصیل دیں گے رانا محمد علی۔ کیا تحقیقات میں پیش رفت ہوئی؟ جی، ایک تو ڈیڈ باڈی کو مردہ خانے منتقل کر دیا گیا ہے، پوسٹ مارٹم ان کا ہو رہا ہے، یہ کنفرم ہو چکا ہے۔ ان کی اہلیہ، ان کے ان لاز میں سے، ان کے جو سسرال میں سے ان کا جو بردر ان لا وہ ساتھ ہے، ان کی بیٹی ساتھ آئی تھی۔ ڈیڈ باڈی کو جمع کروا دیا جناح ہاسپٹل میں۔ کچھ تعین کیا جا رہا ہے کیونکہ جو کہا جا رہا ہے اس کے مطابق تو جنرل ہاسپٹل لگتا ہے ان کو، لیکن انہوں نے جناح ہاسپٹل ڈیڈ باڈی منتقل کی ہے۔ لاہور پولیس کی کوشش ہے کہ پوسٹ مارٹم یہیں سے ہو جائے۔ دوسری جانب یہ پروموشن پہ تھے، انہوں نے گریڈ 21 میں ترقی کے لیے کورس بھی کیا تھا اور ان دنوں وہ او ایس ڈی تھے، ایسا کہنا ہے پولیس ذرائع کا۔ جبکہ لاہور پولیس کے یہ اعلیٰ افسر تھے، ڈی آئی جی ایک اچھے عہدے پہ تعینات تھے۔ ان کی موت ایک اچانک ہو جانا اور اس کی وجوہات کا لیے پوسٹ مارٹم ہونا، اس میں بہت سے شک و شبہات ہوں گے۔ اس میں پوسٹ مارٹم رپورٹ میں سامنے آئے گا کہیں کہ کوئی ایسی اوور ڈوز تو نہیں، کوئی میڈیسن تو نہیں ایسی لی گئی جس کی وجہ سے ان کی جو ہارٹ بیٹ بند ہونے کی وجہ سے ان کی ہلاکت ہوئی ہے۔ دوسری جانب لاہور پولیس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس کا مقدمہ بھی درج کیا جائے گا۔ وہ پوسٹ مارٹم بغیر مقدمہ درج کرنے کے کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لاہور پولیس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس واقعے کی تحقیقات جو سی ہیں وہ ایک غیر جانبدارانہ طور پہ کی جائیں گی۔ اور دوسری جانب لاہور پولیس کے اعلیٰ افسران ہیں، پنجاب پولیس کے تعینات رہے ہیں، یہ ٹریفک ڈی آئی جی ٹریفک ریلوے کے اندر بھی انہوں نے تعیناتی لی ہے۔ اب ان کی پروموشن کورس کیا تھا انہوں نے چند روز قبل ہی، اور ان کی گریڈ 21 میں ترقی ہونی تھی۔ اس حوالے سے تصدیق ہو چکی ہے کہ ان کا پوسٹ مارٹم جو ہے وہ ہوگا، تحقیقات ہوں گی۔ ٹھیک ہے، تحقیقات ہوں گی۔ بہت شکریہ رانا محمد علی۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سیولینز کے ٹرائل کے خلاف آئینی درخواستوں پر سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کرتے ہوئے عدالت کی اجازت کے بغیر فوجی عدالتوں کو سیولینز کا ٹرائل کرنے سے روک دیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کوئی غیر آئینی اقدام ہوا تو عدالت مداخلت کرے گی۔ رپورٹ دیکھیے۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں سے متعلق درخواستوں پر سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ فوجی عدالتوں کو عدالت کی اجازت کے بغیر سویلینز کا ٹرائل کرنے سے روک دیا۔ 9 مئی واقعات کے ملزمان کو اپیل کا حق دینے سے متعلق اٹارنی جنرل نے 1 ماہ کی مہلت مانگی۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ نے کی۔ اٹارنی جنرل نے دلائل میں کہا، زیر حراست 102 افراد کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کے لیے بہت احتیاط برتی گئی ہے، تاہم 9 مئی جیسا واقعہ ملک کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا اور مستقبل میں ایسے واقعات کی کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا، سویلین پر آرمی ایکٹ کے اطلاق کے لیے شرائط رکھی گئیں، جبکہ یہ عدالتیں مخصوص وقت کے لیے تھیں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کے استفسار پر اٹارنی جنرل نے کہا، آرمی ایکٹ پر بنیادی انسانی حقوق کا اطلاق نہیں ہوتا۔ جسٹس منیب اختر نے کہا، آپ کے دلائل سے تو معلوم ہوتا ہے بنیادی حقوق ختم ہو گئے ہیں، کیا پارلیمنٹ آرمی ایکٹ میں ترمیم کر سکتی ہے؟ اٹارنی جنرل بولے، پارلیمنٹ کے پاس آرمی ایکٹ میں ترمیم کا اختیار ہے۔ چیف جسٹس نے کہا، پاکستان کے نظام عدل میں عدلیہ کی آزادی کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اور اسے سپریم کورٹ بنیادی حق قرار دے چکی ہے، اس لیے ہم ٹرائل کورٹ پر سب کچھ نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ 2015 میں 21ویں ترمیم کے ذریعے آئین کو ایک طرف کر دیا گیا، مگر اب ایسا نہیں۔ اٹارنی جنرل نے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے طریقہ کار سے عدالت کو آگاہ کرتے ہوئے کہا، آرمی ایکٹ رولز کے تحت انکوائری شروع کی جاتی ہے، اس دوران اگر کمانڈنگ آفیسر شواہد سے مطمئن نہ ہو تو چارج ختم کر دیتا ہے۔ ملزم کو چوائس دی جاتی ہے کہ وہ اپنا بیان ریکارڈ کروا سکتا ہے۔ ٹرائل کے دوران ملزم کسی لیگل ایڈوائزر سے مشاورت کر سکتا ہے اور چاہے تو اپنا پرائیویٹ وکیل بھی مقرر کر سکتا ہے۔ جسٹس کے استفسار پر اٹارنی جنرل نے کہا، بادی النظر میں گرفتار 102 ملزمان میں سے کسی کو سزائے موت یا 14 سال سزا نہیں دی جائے گی۔ 9 مئی کے واقعات پر ملٹری کورٹس کے ٹرائل کے فیصلوں میں تفصیلی وجوہات کا ذکر ہوگا۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیوریٹو ریویو کیس خارج کر دیا گیا۔ چیف جسٹس نے حکومت کی جانب سے دائر درخواستیں واپس لینے کی بنیاد پر ریویو کیس خارج کیا ہے۔ چیف جسٹس نے 10 اپریل کو ان چیمبر سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔
जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू केस का फैसला जारी। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दायर दरखास्तें हुकूमत की जानिब से वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 10 अप्रैल 2023 को हुकूमती दरखास्तों पर समाअत की थी। फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में नजरसानी केस में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दायर सदारती रेफरेंस खारिज कर दिया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज और नामजद चीफ जस्टिस भी हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा के चीफ जस्टिस बनने की राह में आखिरी रुकावट भी दूर हो गई। हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस नामजदगी का नोटिफिकेशन जारी कर रखा है। पीटीआई दौरे हुकूमत में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ कार्रवाई के लिए 18 क्यूरेटिव रिव्यू दायर किए गए थे। जिना हाउस हमला केस और जलाओ घिराव के 5 दीगर मुकदमात में लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत में 8 अगस्त तक तौसीह कर दी। दूसरी जानिब पुलिस ने भी तफ्तीश मुकम्मल कर ली। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट। जिना हाउस हमला के समय जलाओ घिराव के मुकदमात की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज अबर गुल ने बतौर ड्यूटी जज केस की समाअत की। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अबूरी जमानत की मयाद मुकम्मल होने पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरियाद अली शाह ने अदालत को बताया कि चेयरमैन पीटीआई तफ्तीश में कसूरवार पाए गए हैं। स्पेशल ड्यूटी जज ने चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानतों में 8 अगस्त तक तौसीह कर दी। आइंदा समाअत पर वकला को दलाल के लिए भी तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ थाना सरवर रोड, गुलबर्ग, शादमान समेत दीगर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज हैं। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी और असद उमर भी 9 मई वाकयात के मुकदमात में अबूरी जमानत मुकम्मल होने पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। अदालत ने दोनों की अबूरी जमानतों में भी 8 अगस्त तक तौसीह कर दी और आइंदा समाअत पर वकला को दलाल के लिए तलब कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की पेक्स कमेटी का दूसरा इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़राअत, हैवानात, मादनियात, कानकुनी और IT तवानाई के शोबों में सरमायाकारी के लिए मंसूबों की मंजूरी दे दी। सरमायाकारों को भरपूर सहूलियात फराहम करने की हिदायत भी की गई। रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुआशी बहाली के लिए कायम एपेक्स कमेटी का दूसरा इजलास। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वज़राए आला, वफाकी व सूबाई वज़रा और आला हकाम की शिरकत। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने ज़राअत, हैवानात, मादनियात, कानकुनी, IT और तवानाई के शोबों में दोस्त ममालिक की तरफ से सरमायाकारी के हसूल के लिए मंसूबों की मंजूरी दी और हिदायत की कि इन मंसूबों पर अमल दरामद और उन्हें अमली शक्ल देने के लिए दिलचस्पी दिखाने वाले सरमायाकारों को भरपूर सहूलियात फराहम की जाए। एलामिया के मुताबिक एपेक्स कमेटी ने SIFC की कारकर्दगी, सेमिनार्स के इनकाद और मंसूबों के इफ्तिताह के जरिए मुमकिना सरमायाकारों तक रसाई की हिकमत अमली पर इत्मीनान का इजहार किया। एपेक्स कमेटी ने वज़रा की जानिब से SIFC के तहत सरमायाकारों के लिए तैयार करदा मुख्तलिफ मंसूबों का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म निगरान सेटअप असेंबलियों की तहलील पर इत्तेहादियों से मुज़ाकरात के लिए मुस्लिम लीग नून के सीनियर वज़रा पर मुश्तमिल 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। निगरान सेटअप की तश्कील ने इत्तेहादियों से मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी। सरदार याद सादिक, साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और इसहाक डार कमेटी में शामिल। वज़ीर आज़म ने तीनों बड़ी इत्तेहादी जमातों को भी मुज़ाकराती कमेटियां तश्कील देने की तजवीज़ दे दी। मुस्लिम लीग नून की कमेटी इत्तेहादियों से निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर भी मुशावरत करेगी। नून लीग की क़यादत तमाम मामलात पर नवाज शरीफ से भी राब्ते में है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट आउटसोर्स करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। दूसरे मरहले में कराची और लाहौर एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने का फैसला किया गया है। रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट आउटसोर्स करने की तैयारी मुकम्मल। आउटसोर्स कमेटी का बैनुल अक़वामी अखबारात में टेंडर जारी करने का फैसला। दूसरे मरहले में लाहौर कराची एयरपोर्ट्स आउटसोर्स किए जाएंगे। एविएशन ज़राए के मुताबिक कामयाब बोली दहिंदा कंपनी एयरपोर्ट के अंदर सहूलियात में इजाफा की जिम्मेदार होगी और आलमी ब्रांड्स और ड्यूटी फ्री शॉप्स खोलने का एहतमाम करेंगी। कामयाब बोली दहिंदा एयरपोर्ट की इमारत की तज़ीन व आराइश, मरम्मत, सफाई समेत तमाम उमूर की जिम्मेदार होगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की गुंजाइश 1 करोड़ 30 लाख सालाना तक बढ़ाई जाएगी। एयरपोर्ट सिक्योरिटी और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के शोबे सिविल एविएशन के पास ही रहेंगे। ज़राए के मुताबिक स्कर्दू एयरपोर्ट को भी आउटसोर्स करने पर गौर किया जाएगा। बिजली के बिलों में TV फीस के साथ रेडियो फीस भी शामिल की जाएगी। मुल्क भर के सारिफीन से माहाना 54 करोड़ 89 लाख और सालाना 6 अरब 58 करोड़ रुपए इजाफी वसूल किए जाएंगे। इस्लामाबाद से ज़ीशान यूसुफ की रिपोर्ट।
रोशनी के नाम पर अंधेर नगरी, एक तरफ टैक्सों की भरमार, अब टीवी के बाद रेडियो फीस भी बिजली बिलों में शामिल। रेडियो पाकिस्तान का खसारा भी अब अवाम भुगतेगी। बिजली बिलों में 35 रुपए टीवी फीस पहले से ही शामिल है, अब रेडियो फीस के नाम पर 15 रुपए इजाफी शामिल किए जाएंगे। रेडियो फीस की मद में सार्फिन से माहाना 54 करोड़ 89 लाख 26,896 रुपए लिए जाएंगे। सालाना 6 अरब 58 करोड़ 71 लाख 22,752 रुपए हासिल होंगे। पीटीवी और रेडियो की फीसें मिलाकर बिल में 50 रुपए शामिल होंगे। इससे सार्फिन पर माहाना 1 अरब 82 करोड़ 97 लाख 56,300 रुपए का बोझ पड़ेगा। सालाना बुनियाद पर सार्फिन 21 अरब 95 करोड़ 70 लाख 75,600 रुपए देंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने वज़ारत तालीम की जानिब से तैयार किए गए हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी बिल की मुखालफत कर दी। एहसन इकबाल ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखकर हायर एजुकेशन कमीशन के क़वानीन को तब्दील न करने का मशवरा दिया। रिपोर्ट देखिए। वज़ीर मनसूबाबंदी की जानिब से वज़ारत तालीम के हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी बिल की मुखालफत। हायर एजुकेशन कमीशन के क़वानीन में तरमीम न की जाए, एहसन इकबाल का वज़ीर आज़म को ख़त में मशवरा। एहसन इकबाल ने ख़त में कहा है कि HEC को आला तालीमी विजन 2010 के नतीजे में 2002 में कायम किया गया था। आज बैनुल अक़वामी इंडेक्सेस में HEC की कारकर्दगी नुमाया है। गुज़िश्ता हुकूमत ने जो तरमीम की थी, बतौर अपोजिशन हमने उनकी मुखालफत की थी और वादा किया था कि हुकूमत मिलने पर असल ऑर्डिनेंस को बहाल करें। खत में कहा गया है कि ऑर्डिनेंस में तरमीम कमीशन की खुद मुख्तारी में मुदाखलत के मुतरादिफ है। कमीशन के अफराद की तादाद में कमी और चेयरमैन से वफाकी वजीर का स्टेटस वापस लेना दुरुस्त इकदाम नहीं। तरमीम से HEC गैर अहम इदारे के तौर पर वजारत तालीम के मातहत हो जाएगा। पंजाब के मुख्तलिफ दरियाओं में सैलाब के बायस किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कई देहात ज़ेरे आब आ चुके, जबकि कसूर में गंडा सिंह के मकाम पर दरियाए सतलुज में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। पसरूर में नाला डैक का पानी घरों में दाखिल हो गया है। पंजाब के मुख्तलिफ दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल, दरिया रावी और सतलुज से मुल्हिका आबादियों को मुश्किलात का सामना। एट गंडा सिंह वाला के मकाम पर सतह 18 फुट तक बुलंद हो गई है। पानी का बहाव 35,000 क्यूसिक होने के बायस सैकड़ों एकड़ पर फसलें ज़ेरे आब आ गईं। आरिफ वाला ढोला बंद के मकाम पर पानी हिफाजती बंद के किनारों तक पहुँच गया। मकीनों के पुश्ते मजबूत करने के लिए अपनी मदद आप के तहत कार्रवाइयाँ जारी हैं। एट सुलेमानकी के मकाम पर भी पानी की सतह में फिर इजाफा हो रहा है। हजारों एकड़ कीमती फसलें तबाह हो गयी। दर्जनों रिहायशी डेरे आबादियाँ शदीद मुतासिर हुई। मुतासरा इलाकों के हजारों लोगों की नकल मकानी का सिलसिला भी जारी है। रावी में जसड़ के मकाम पर तुगयानी में कमी आई है, ताहम दरियाई बेल्ट में हजारों एकड़ अराजी ज़ेरे आब आ चुकी है। पसरूर में नाला डैक का पानी घरों में दाखिल हो गया। हजारों एकड़ पर लगी फसलें तबाह हो गई हैं। चिनियोट में दरिया चनाब की सतह में फिर से इजाफा हो रहा है। चिनियोट के मकाम से 1,60,000 क्यूसिक से जायद का सैलाबी पानी का रैला गुजर रहा है। जिला इंतजामिया ने तमाम इदारों को हाई अलर्ट कर दिया। दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब है। चश्मा बैराज पर पानी की आमद 3,25,000 जबकि अखराज 3,20,555 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मार्केट में जबरदस्त तेजी रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब रुपए की कदर में गिरावट का सिलसिला बरकरार है। सोने के रेट मजीद बढ़ गए। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान 600 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी देखी गई और इंडेक्स 15 माह बाद 46,000 का लेवल अबूर कर गया। तमाम इख्तिताम पर मार्केट 522 पॉइंट्स इजाफे से 45,920 पॉइंट्स पर बंद हुई। ब्रोकर्स का कहना है कि IMF की जानिब से दिया गया मुआशी रोड मैप मुस्बत रुझान की बड़ी वजह है। दूसरी जानिब IMF डील की खबरों के बाद डॉलर की कदर में आई गिरावट आर्जी साबित हुई। रवा माह डॉलर 10 रुपए 56 पैसे नीचे आने के बाद 11 रुपए 38 पैसे महंगा हो गया। सिर्फ आज की बात करें तो इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 1 रुपए 67 पैसे इजाफे से 286 रुपए 81 पैसे पर बंद हुई। डीलर्स का कहना है कि इंपोर्ट पर पाबंदी खत्म होने के बाद डॉलर की डिमांड बढ़ने से रुपया कमजोर हो रहा है। ओपन मार्केट में आवाम को डॉलर 292 रुपए का मिल रहा है। सोने की फी तोला कीमत 1,800 रुपए इजाफे से 2,22,900 रुपए हो गई।